Hello, class 11th. Let's continue chapter 1 sets. Now, you know that what is a set. So, it is a well defined collection of objects, elements, or members of the same kind. Now, how to denote a set? So, a set is usually denoted by a capital letter like A, B, C, etc. Okay, and the elements, members, or objects of a set are usually denoted by a small letter, small a, small b, or any of the letters. Now, how to write a set? The elements of a set are enclosed in curly braces. In lower classes, you heard of three types of brackets: round bracket, curly, and square. Now you are going to use this one for representing a set. So the elements of a set are enclosed or written inside a curly bracket. For example, if we need to write set of first four natural numbers, then natural numbers we know that 1, 2, 3, 4, put a curly bracket here and end up here. So in this way we write a set, and without curly bracket there is no meaning of set. That will only be considered as elements only, means numbers. अगर आप खाली 1 2 3 4 लिखते हैं तो वो numbers ही माने जाएंगे, उस set के अंदर उसका कोई वो नहीं होगा. Okay, so next, there are some standard or particular sets in mathematics. मीन्स इनके लिए जो एब्रीवेशंस हैं या लेटर्स हैं वो पर्टिकुलरली यूज़ किया जाता है. यू कैन सी हियर फॉर नेचुरल नंबर्स एन इज़ यूज, कैपिटल एन इज़ यूज. होल नंबर्स कैपिटल डब्ल्यू इज़ यूज. इंटीजर्स आई और जेड. रैशनल्स के लिए क्यू यूज़ किया जाता है, कैपिटल. ओके, नाउ व्हाट आर नेचुरल नंबर्स? दे आर पॉजिटिव नंबर्स, दे आर काउंटिंग नंबर्स एंड स्टार्ट फ्रॉम 1. सो अगर हमें सेट की फॉर्म में लिखना हो तो हाउ डू वी राइट इट? कर्ली ब्रैकेट 1 2 3 एंड सो ऑन, क्लोज द कर्ली ब्रैकेट. देन होल नंबर्स, एक ज़ीरो और इंक्लूड हो जाता है. होल नंबर्स अपने आप में कंप्लीट नंबर्स होते हैं. ऑल्दो नेचुरल नंबर्स भी कंप्लीट होते हैं, बट होल नंबर्स में एक ज़ीरो और ऐड हो जाता है. सेट की फॉर्म में 0 1 2 3 एंड so on. Next is integers. So integers also include negative numbers. So 0 ले लेते हैं सेंटर में, राइट साइड में क्या होते हैं? पॉजिटिव नंबर्स. लाइकवाइज योर नंबर लाइन 1 2 एंड सो ऑन, क्लोज द कर्ली ब्रैकेट, -1 -2 and so on. So these are the elements in the set of integers. Next is set of rational numbers. Rational numbers, they are written in the form p by q, where q is not equal to 0 and p and q both are integers. Okay, so you can see here, likewise natural numbers, whole numbers and integers, we cannot write the particular elements of rational numbers in this form, because दो रैशनल नंबर्स के बीच में देयर आर इन्फाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर्स लाई. सो इसीलिए हम नहीं बता सकते कि 1/2 या 1/3 कोई भी रैशनल नंबर है तो उससे नेक्स्ट रैशनल नंबर क्या होगा. देयर इज़ अनदर फॉर्म टू रिप्रेजेंट देम ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ ए सेट, एंड वी आर गोइंग टू स्टडी दैट फर्दर. Okay, so there are a few more standard sets in mathematics. So here it is, set of irrational numbers, set of real numbers. So set of irrational numbers के लिए हम use करते हैं letter T, set of real numbers के लिए capital R. Set of irrational numbers which are not in the form P by Q, and that is the difference between rational and irrational numbers, right? कि इस रैशनल नंबर्स को पी बाई क्यू फॉर्म में लिखा जा सकता है, बट इरैशनल को नहीं लिखा जा सकता. देयर इज़ अनदर डिफरेंस बिटवीन देम of their decimal expansion: terminating, non-terminating and repeating, non-terminating and non-repeating. Remember, टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग रैशनल में आता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग या रियकरिंग भी रैशनल में आता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग जो है वो इरैशनल की कैटेगरी में आता है. सो नेक्स्ट इज सेट ऑफ रियल नंबर्स. रियल नंबर्स में ये सारे नंबर्स इंक्लूड होते हैं, मीन्स रैशनल इरैशनल बोथ. तो वी कैन से रियल नंबर्स कंसिस्ट ऑफ रैशनल एंड इरैशनल बोथ. Okay, another one is Z plus. It can be used to represent a set of positive integers only. Q plus for positive rational numbers, R plus for positive real numbers.
Now you can see here real numbers consist of rational and irrational numbers both, and जो natural numbers, whole numbers और integers होते हैं वो भी rational numbers की category में आते हैं. तो सारे नंबर्स को रियल नंबर इंक्लूड करता है. एंड इफ़ वी सी दैट नेचुरल नंबर्स, अभी तक के नंबर सिस्टम में जितने भी हमने नंबर्स पढ़े हैं, नेचुरल नंबर्स इज़ द स्मॉलेस्ट सेट, एंड इफ़ वी ऐड ज़ीरो टू इट तो ये बन जाता है हमारा होल नंबर्स का सेट, राइट. और अगर इसमें नेगेटिव नंबर्स भी इंक्लूड कर दिए जाएं तो ये हो जाता है आपका इंटीजर्स का सेट. और अगर इसमें p/q फॉर्म इंक्लूड हो जाते हैं तो वो बन जाता है आपका रैशनल नंबर्स का सेट. नाउ इरैशनल नंबर्स का जो सेट है इसका कोई कनेक्शन नहीं है, दिस इज़ अ सेपरेट वन सेट. डिफरेंस है रैशनल और इरैशनल में टोटली. ओके, एंड नाउ लास्ट वन इज़ रियल नंबर्स का सेट. तो रियल नंबर्स का सेट जो है वो इन सारे सेट्स को, सारे एलिमेंट्स को, नंबर्स को इंक्लूड करता है. सो टिल नाउ जितने भी नंबर्स हमने पढ़े हैं, नेचुरल नंबर्स का जो सेट है वो स्मॉलेस्ट हो गया, एंड जो रियल नंबर्स का सेट है वो यू कैन से ग्रेटेस्ट और लार्जेस्ट. ओके, नेक्स्ट इज methods to represent a set. So there are two forms in which we can represent a set, and one is roster or tabular form, also called list form, and another one is set builder form. roster form में हम elements को curly brackets में तो लिखते ही हैं, साथ में separated by comma whatever the elements are. And set builder form में we write the प्रॉपर्टी, वी मेंशन द प्रॉपर्टी, उनकी जो आपस में जो कॉमन प्रॉपर्टी होती है सिर्फ उसके थ्रू हम उसको डिफाइन करते हैं. वी डोंट राइट द एग्जैक्ट एलिमेंट्स. ठीक है, सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी नीड टू राइट अ सेट ऑफ वॉवल्स, तो वॉवल्स रोस्टर फॉर्म में क्या हो जाएंगे? A, E, I, O, U. दिस ऑल आर वोवल्स. ये हो गई इसकी रोस्टर फॉर्म कि हमने सारे एलिमेंट्स को पर्टिकुलरली लिख दिया, सेपरेटेड बाय कोमा एंड इनसाइड द कर्ली ब्रैकेट्स. बट नाउ अगर हमें वोवल्स को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हो, सेट ऑफ वोवल्स को, तो हाउ डू वी राइट? ये सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं सेट बिल्डर फॉर्म में सबसे पहले आप एक वेरिएबल में डाल देंगे. लेट्स टेक दैट वेरिएबल एक्स सच दैट, अब वो वेरिएबल एक्स क्या है? विल डिफाइन दैट एक्स इज अ वोवल in English alphabet and close with curly brackets. So in this way set builder form में लिखा जाता है. जो भी उनकी common property है जस्ट उसको define करना है. Okay, let's understand it better through more examples. Okay, so here you can see set of even natural numbers. So what are even natural numbers? Obviously multiples of 2 होते हैं, जो 2, 4, 6, 8 and so on, and this is the roster form only, because roster form में just to write the elements directly, exactly जो elements हैं उन्हीं को लिखना है separated by comma. ठीक है, एंड सेट बिल्डर फॉर्म में अब इनकी कॉमन प्रॉपर्टी क्या है कि ये मल्टीपल्स ऑफ 2 हैं. और एक सिंपल वे है इसको लिखने का कि जिस सिंपल डिफाइन कर दिया आपने एक्स सच दैट एक्स इज़ एन इवन नेचुरल नंबर. एंड अनदर वन आई हैव यूज्ड हियर अ प्रॉपर्टी एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 2n. 2n क्यों? क्योंकि मल्टीपल्स ऑफ 2 है, तो 2 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होकर वो इवन बन जाता है. बट अब एक और वेरिएबल हमने ले लिया n, पहले x लिया एक वेरिएबल, x में सारे इवन नेचुरल नंबर डाले, तो x को हमने बोला कि x 2n है, तो अब एक और वेरिएबल ले लिया n, तो अब n को डिफाइन कर, मतलब जितने भी वेरिएबल्स आप यहाँ पे प्रॉपर्टी डिफाइन करने के लिए ले रहे हैं उनको आपको डिफाइन भी आगे करना है फर्दर. ठीक है, सो वेयर n क्या है? एक नेचुरल नंबर है, क्योंकि आपको बताना पड़ेगा n नेचुरल नंबर, बिकॉज देर आर मैनी टाइप्स ऑफ नंबर्स हियर. अगर नेचुरल नहीं है, इंटीजर है, तो वो तो नेगेटिव भी ले लेगा, तो इसलिए आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा कि वो नेचुरल नंबर है. नेचुरल नंबर्स स्टार्ट फ्रॉम 1, तो ये 1 से स्टार्ट होगा. तो अगर आप n को 1 देंगे तो 2 इंटू 1 पहला नंबर हमारे पास आ गया 2, एंड दूसरा नंबर 2 इंटू 2 4 एंड सो ऑन. तो यू विल गेट सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स. ओके, अनदर वन एग्जाम्पल इज सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स. अगेन रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए वी विल डायरेक्टली मेंशन द एलिमेंट्स 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन, राइट. एंड सेट बिल्डर फॉर्म में एक तो सिंपल तरीका वही हो गया कि x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर्स. अनदर वन यू कैन सी हियर x सच दैट x इज इक्वल टू 2n माइनस 1 वेयर n बिलोंग्स टू n. 2n माइनस 1 मल्टीपल्स ऑफ 2 जो होते हैं, अगर उसमें हम -1 कर दो या +1 कर दो, इन बोथ केसेस यू विल गेट एन ऑड नंबर.
ठीक है। तो अगर यहाँ पे -1 इसलिए किया है क्योंकि -1 करने के बाद अगर आप n को 1 वैल्यू देते हैं, n जो नेचुरल नंबर हमने बोला है, तो n जो सबसे पहले वैल्यू लेगा वो 1 लेगा। तो अगर आप यहाँ पे 1 पुट करोगे तो 2 × 1 - 1, 2 - 1, तो सबसे पहला नंबर हमें 1 मिलेगा और 1 ही चाहिए। बट अगर आप इसको 2n + 1 लेते हो तो फर्स्ट नंबर आपको 3 मिलेगा, मतलब 1 जो है वो आपको स्किप हो गया एक तरह से। तो आपको अगर सारे ऑड नंबर्स दिखाने हैं तो आपको 2n - 1 लेना पड़ेगा। बट येस, ऑब्वियसली 2n - 1 एंड 2n + 1 बोथ रिप्रेजेंट्स ऑड नंबर्स, राइट? Okay, next is let's discuss few questions. Now you can see here, write in the set builder form. So set builder form में लिखने के लिए हमें प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई करनी है कि क्या कॉमन प्रॉपर्टी उन एलिमेंट्स में है. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन. Set E is equal to 3, 6, 9, 12 and so on. What property is here? These all are multiples of 3. 3 के टेबल में आ रहे हैं सब, तो 3 के मल्टीपल्स हो गए. अभी हमने 2 के मल्टीपल्स को करा, तो सेम प्रॉपर्टी से हम इसको भी लिख सकते हैं. सो हाउ डू वी राइट इट एज set E is equal to x such that x is equal to multiples of 2 को हमने लिखा था 2 × n, तो multiples of 3 हो जाएगा 3 × n, right? Where n belongs to n. बट यहाँ पे एक और चीज़ है कि ये जो सेट है वो एक फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स को इंक्लूड कर रहा है. मीन्स 3, 6, 9, 12 आगे सो ऑन नहीं है. पीछे जो हमने मल्टीपल्स ऑफ 2 किए या इवन नेचुरल नंबर्स किए वो उसमें कोई लिमिट नहीं थी. यहाँ पे एक लिमिट बता दी गई है, तो आपको वो लिमिट भी मेंशन करनी है. उसको कैसे मेंशन करेंगे? फर्दर यू विल राइट जो n है उसकी एक लिमिट है <= 1 एंड <= 4. बिकॉज मल्टीपल्स ऑफ 3 कितने आ रहे हैं? 4 आ रहे हैं. दैट मीन्स जो n हमारा वेरी कर रहा है, n हमारा जो वेरी कर रहा है वो 1 से लेके 4 तक. अगर आप n को 1 लेंगे यहाँ पे तो यू विल गेट 3, 2 लेंगे तो 6 एंड देन 9 एंड देन 12. तो जहाँ पे लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं तो आपको वहाँ पे लिमिट भी मेंशन करनी है. अदरवाइज यू जस्ट विल राइट कि n कैपिटल N से बिलोंग कर रहा है या कैपिटल W से बिलोंग कर रहा है. मीन्स वो होल नंबर भी हो सकता है या इंटीजर से बिलोंग कर रहा है. ओके, according to the question. Second one is 2, 4, 8, 16, 32. प्रॉपर्टी, क्या कॉमन प्रॉपर्टी दिखाई दे रही है? 2 देन 4. 2 2 4 भी होता है, बट 2 स्क्वायर भी 4 होता है. अगर थर्ड नंबर 6 होता तो ये 2 के मल्टीपल्स होते, बट यहाँ पे थर्ड नंबर 8 है. दैट मीन्स दीज आर द पार्स ऑफ 2, राइट? सो कॉमन प्रॉपर्टी मिल गई हमें. दीज आर द पार्स ऑफ 2. सो द सेट F in set builder form can be written as x such that x is equal to 2 की पार में अभी हमें दूसरा वेरिएबल लेना पड़ेगा n. प्रॉपर्टी हो गई 2 की पार n, बट अब n बताना होगा कि n क्या है. n सबसे पहले तो नेचुरल नंबर है, बट n की एक लिमिट है. n कहाँ से, कितने एलिमेंट्स हैं इसके अंदर? 1 2 3 4 5, तो 5 तक जाना चाहिए n की वैल्यू, क्योंकि n की वैल्यू 1 लेंगे तो यू विल गेट 2 की पावर 1, दैट इज़ 2. n की वैल्यू आप 2 लेंगे तो 2 की पावर 2 एंड सो ऑन, राइट? तो n की एक लिमिट है और वो आपको मेंशन करनी पड़ेगी कि n 1 से स्टार्ट हो रहा है, बट कहाँ तक जा रहा है आपका? 5 तक. ओके, यू कैन मेंशन ओनली अपर लिमिट बिकॉज जो लोअर लिमिट है वो ऑलरेडी हमें यहाँ से क्लियर हो जाती है कि n जो है वो नेचुरल नंबर है. लाइक दिस, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x सच दैट x इज इक्वल टू 2n, वेयर n बिलोंग्स टू n जो है आपने अगर मेंशन कर दिया है तो यू विल राइट ओनली n इज़ लेस देन और इक्वल टू 5, क्योंकि ये अंडरस्टूड है कि अगर n नेचुरल नंबर है तो वो 1 से स्टार्ट होगा ही होगा और 1 के बाद 2 ही आएगा. बट हमने अपर लिमिट मेंशन करनी है कि वो कहाँ तक मैक्सिमम वैल्यू ले रहा है नेचुरल नंबर से, राइट? नेक्स्ट पार्ट इज़ g इज़ इक्वल टू 5, 25, 125, 625. सेम, these are the powers of 5. So you can write it as, I am directly mentioning only the property 5n, and n जो है वो natural number से belong कर रहा है. n belongs to natural numbers and n is less than equal to 4 here because यहाँ पे 4 multiples तक ही ले रहा है सिर्फ, right? Next is 2, 4, 6 and so on, set of even natural numbers. अभी हमने किया है ये example. Next is I is equal to 1, 4, 9 and so on up to 100. पहले तो प्रॉपर्टी क्या है? 1, 4. 1 can be written as 1 square, 4 can be written as 2 square
एंड देन 3 स्क्वायर एंड लास्ट कहाँ तक मेंशन हो रहा है ये 10 स्क्वायर। तो प्रॉपर्टी मिल गई हमें। सो हाउ डू वी राइट x सच दैट x इज इक्वल टू, पावर तो सेम है सबकी, पावर चेंज नहीं हो रही है, इस टाइम पे बेस चेंज हो रहा है। बेस पहले क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, यानी जो वेरिएबल हमें देना होगा वो बेस को देना होगा, n हो जाएगा बेस। इस टाइम पे पावर क्या हो जाएगी, वो सबकी 2 है, ठीक है। फर्स्ट जो पार्ट था या सेकेंड पार्ट, ये सॉरी सेकेंड पार्ट में आपने जो पावर थी वो चेंज हो रही थी तो वहाँ पे n लिया था, लेकिन यहाँ पे बेस चेंज हो रहा है, मीन्स बेस अलग हो रहा है और पावर जो है वो सेम है, x इज इक्वल टू n स्क्वायर। बट n क्या है यहाँ पे, नेचुरल नंबर है। इज़ एन लिमिटेड, इज देयर नंबर एलिमेंट्स लिमिटेड, येस। वो कहाँ तक जा रहे हैं, 100 तक, यानी कि 10 स्क्वायर तक। तो n की वैल्यू कहाँ तक जा रही है, 10 तक जा रही है। दैट मीन्स n इज़ लेस देन और इक्वल टू 10 एंड देन क्लोज द कर्ली ब्रैकेट। Okay, so let's discuss also few examples how to write in the roster form. Now first one is x such that x is an integer and x is greater than -3 but less than 7. इंटीजर्स नेगेटिव भी होते हैं और पॉजिटिव भी होते हैं। इंटीजर्स को आइडेंटिफाई करने का सबसे बेस्ट तरीका है, यू इमेजिन नंबर लाइन। नंबर लाइन पे आप सारे जो नंबर्स हम नॉर्मली रिप्रेजेंट करते हैं, मींस रैशनल नंबर को छोड़ करके उनके लिए तो हम स्पेसिफिकली मेंशन करते हैं, बट सिंपली एक नंबर लाइन पे हम क्या लेते हैं, 0 1 2 3 एंड लेफ्ट साइड पे -1 -2 एंड दोज आर इंटीजर्स ओनली, राइट। तो यहाँ पे बोल रहा है कि x जो है वो ग्रेटर देन -3 है बट लेस देन 7 है। -3 के ग्रेटर, -3 के जस्ट राइट में नंबर लाइन पे क्या होता है नंबर, दैट इज -2। तो नेक्स्ट क्या होगा, -1 एंड देन 0 एंड देन 1 एंड देन 2 3 4 5 6, लेस देन 7 था तो 6 पे एंड हो जाएगा एंड देन क्लोज द कर्ली ब्रैकेट, राइट। नेक्स्ट इज x such that x is a natural number less than 6. Natural number less than 6. Very simple. Natural number start from 1, 2, 3, 4 and 5. क्योंकि लेस देन 6 बोला था, लेस देन इक्वल टू 6 होता तो 6 भी इंक्लूड हो जाता है, राइट। नेक्स्ट इज x such that x is a 2-digit natural number such that the sum of its digits is 8. x एक ऐसा 2-digit नंबर है जिसके डिजिट्स का सम 8 है। 2-digit नंबर तो बहुत सारे होते हैं लेकिन उनका जो सम है वो 8 है। तो लेट्स स्टार्ट विद 1 के साथ क्या पेयर बनेगा कि वो 8 हो जाए, 1 7 यानी 17, 2 6 मीन्स 26, देन 3 5 35, देन 4 4 44। सबका सम आप देख सकते हो, डिजिट्स का सम 8 है, 4 4 के बाद हो जाएगा आपका 5 3, रिवर्स हो जाएंगे ये 6 3 7 1 एंड लास्ट वन 8 0। 8 0 का जो रिवर्स है वो 1 डिजिट हो जाएगा, इसलिए वो वहाँ इंक्लूड नहीं होगा बट यहाँ पे इंक्लूड होगा, राइट। ओके, नेक्स्ट इज x such that x is a prime number which is a divisor of 60. x एक ऐसा प्राइम नंबर है जो 60 का डिविज़र है। पहले देख लेते हैं 60 के डिविज़र्स कौन से होंगे। स्टार्ट फ्रॉम 1, 2 भी डिविज़र है इसका, 2 भी डिवाइड करता है, 3 डिवाइड करता है, येस, 4 डिवाइड करता है, येस, 5 डिवाइड करता है, येस, 6, येस, 7 नहीं करता है, 8 नहीं करता है, 9 भी नहीं करता है, देन 10, ओके, देन 12 एंड मैनी मोर, आई थिंक 20 30 और काफ़ी सारे आ जाएंगे। बट हमें कौन सा यहाँ पे चाहिए जो एक प्राइम नंबर है। अब इनमें से प्राइम नंबर बड़े इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। प्राइम नंबर जो 1 है वो ना तो प्राइम में आता है ना कॉम्पोजिट में आता है। एंड व्हाट आर प्राइम नंबर्स which can be divided by 1 or itself, or you can say which have only 2 factors, 1 and itself, और composite होता है which have more than 2 factors other than 1 and itself, right। so 1 जो है ना तो प्राइम में काउंट होता है ना ही वो कॉम्पोजिट में काउंट होता है। तो यहाँ पे 2 से स्टार्ट होगा क्योंकि 2 के सिर्फ 2 ही फैक्टर हैं, एक वो खुद और एक 1। 3 भी एक प्राइम नंबर है, 5 भी एक प्राइम नंबर है, yes। So there are 3 numbers which are prime also divisors of 60, क्योंकि इसके बाद जितने भी नंबर्स 60 को डिवाइड करेंगे वो कॉम्पोजिट होंगे।